वेलकम बैक। और कैसे हैं आप लोग? इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं दो चीज़ें छोटी सी क्लियर करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि वी वुड इंश्योर कि ये वीडियो इंग्लिश में भी हो और हिंदी में भी हो, बिकॉज़ ये इंडिया की दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से आती हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट दिस वीडियो रीचेज आउट टू मैक्सिमम पीपल, just to ensure that everybody gets to know the content of this video, which is very important for Indian students while going abroad. But before that, सैनिटाइज़र और मास्क, इन दोनों का प्रयोग करना ना भूलें। आप कहीं भी हों इस वक्त, इससे अच्छी वैक्सीन मार्केट में कोई नहीं है, राइट? सो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन। आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और ऑब्वियसली अपना ख्याल रखें। नाउ लेट्स मूव टू दी रियल कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। हाउ टू चेक रैंकिंग्स। इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कि रैंकिंग कैसे चेक करते हैं। कुछ लोग भैया से पूछते हैं, कुछ भाभी से पूछते हैं, कुछ मम्मी से, कुछ पापा से। सम पीपल आस्क देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सीनियर्स एंड जूनियर्स। बट ये बहुत आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सो रैंकिंग चेक करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग और सब्जेक्ट एरिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रैंकिंग्स। नंबर वन, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एंड नंबर टू, सब्जेक्ट एरिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज्ड होते हैं कि वी शुड चूज़ अ यूनिवर्सिटी रैंकिंग और वी शुड सी अ सब्जेक्ट एरिया रैंकिंग। नंबर वन, अगर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख रहे हो और आपके दिमाग में सबसे ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी आती होगी? हार्वर्ड आता होगा, स्टैनफोर्ड आता होगा, ऑक्सफोर्ड आता होगा, कैम्ब्रिज आता होगा, किसी किसी के दिमाग में बहुत सारे कॉलेजेस आते होंगे, MIT आता होगा, राइट? बट अगर आपको वाइन की पढ़ाई करनी है, इफ़ यू वांट टू स्टडी वाइन मैनेजमेंट, और इफ़ यू वांट टू स्टडी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और इफ़ यू वांट टू स्टडी म्यूजिक, do you think Harvard Business School is going to be the best university, or Harvard University for that matter is going to be the best university to study music? No. So this is why number one thing is university ranking and number two is subject area rankings, and both are different. We will cover that in this video. Number three is wine, sports, music. This is just an example to make you understand there are different kinds of subjects, so there will be different kinds of rankings as well. Number four, location. You can't be looking at Times of India rankings for Spain. You can't be looking at EdUniversal rankings for India. So every region has their own ranking system, but we will talk about the global rankings. Number four, accreditations. Number five, sorry. Now, accreditations are really important because when we talk about rankings, we don't really care about accreditations. There was a time in India when IILM or IIPM, sorry, not LM, I'm really sorry for that, IIPM, which was a college highly ranked in India. The brand ambassador was Shah Rukh Khan, the founder was Arindam Chaudhary, but the college was not accredited by Government of India. So with rankings, you should also be looking at accreditations. And number five, number six, this is the most important point for you. What ranking you should be looking at? Number four, there are four rankings which are really important. Number one, QS, followed by Times, Financial Times, EdUniversal. Now there is no ranking for these rankings. I just mentioned them in random order. You can pick anyone, but QS is usually used for US universities or global rankings. Times again for science or research rankings, mostly common in UK. Financial Times is mostly used for Europe. EdUniversal again, mostly common in Europe, but the best platform I would say for subject matter experts who really want to understand subject area rankings. Let's go to the third one. Problem with India. I am Ahmedabad, I am Bangalore, slipped 10 positions on QS global rankings. ऐसा क्यों होता है कि इंडिया के बेस्ट स्कूल्स टॉप यूनिवर्सिटीज से बहुत पीछे रह जाते हैं, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, दुनिया भर के टॉप को फाउंडर्स या डायरेक्टर्स इंडिया से होते हैं, उसके बावजूद भी इंडियन स्कूल्स पीछे क्यों रह जाते हैं? लेट्स लुक एट अदर न्यूज़। एक न्यूज़ आई थी जिसमें लिखा था कि IIT बॉम्बे पोजीशन डिप्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आउट ऑफ द लिस्ट। तो ऐसा क्यों है कि IIT बॉम्बे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आ पाती? फॉरगेट अबाउट IIT बॉम्बे, IISc भी नहीं आ पाता, और इंडिया में 20+ IITs हैं। इफ़ दे आर नॉट अमंग द टॉप 200 रैंकिंग्स, व्हाट एन इंडियन स्टूडेंट कैन डू? नंबर थ्री, उसका सोल्यूशन भी आपको दिख रहा है। IIT दिल्ली डायरेक्टर स्लैम्स टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया कि वो रैंकिंग्स अच्छी नहीं होती।
अब इस प्रॉब्लम का इंडिया ने सोल्यूशन क्या निकाला? इंडिया ने दो सोल्यूशन निकाले। पहला, IITs won't take part in Times World Rankings this year, raise transparency issues. IITs 7 IITs ने मिलकर ये डिस्कस किया था कि हम भैया पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इन रैंकिंग्स में। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। और दूसरा, IIT दिल्ली के डायरेक्टर कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे क्योंकि हमें अब रैंकिंग से कोई मतलब ही नहीं है। और खैर, हम इन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहे, ना ये वीडियो IITs को क्रिटिसाइज़ करने के लिए है, ना IIMs को क्रिटिसाइज़ करने के लिए है, ना इंडियन रैंकिंग्स को। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर अमंग्स द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ in the world. There is no doubt in terms of curriculum, in terms of pedagogy, in terms of faculty, but कुछ factors होते हैं जहाँ पे इंडिया पीछे रह जाता है। आज हम उन factors की बात करेंगे। Now, as I said, QS ranking. आपको QS rankings अगर देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं? आप गूगल पे डालें QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वेबसाइट का नाम है topuniversities.com, and you will be able to see the best universities in the world. MIT number 1, Stanford number 2, Harvard number 3, Caltech number 4, Oxford, ETH, Cambridge. Now these are amongst the best universities in the world, but these are university rankings, not subject rankings. अगर आपको subject rankings चेक करनी है तो आप स्टडी लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करें, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करें। अगर आपको अकाउंटिंग की रैंकिंग चेक करनी है, आप अकाउंटिंग पे क्लिक करें। एंथ्रोपोलॉजी की करनी है, एंथ्रोपोलॉजी पे क्लिक करें। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी, अर्बन प्लानिंग, वेट साइंस, आप कोई सा भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ यू हैव टू एंटर डेस्टिनेशन। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डालेंगे तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी और आपको क्लिक करना है गो। दैट्स इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो आप सिर्फ इन रैंकिंग्स के भरोसे ना बैठें, क्योंकि ये रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं, बट यहाँ पे जो आप देखेंगे वो होंगी सब्जेक्ट मैटर रैंकिंग्स, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर पहले मैं IIT IIMs की बात कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्लिक करते हैं रैंकिंग इंडिकेटर्स पे। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन रैंकिंग इंडिकेटर्स, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स, पैरामीटर्स हैं जिस पे ये वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज या कोई सी भी रैंकिंग एजेंसी कॉल जिसको रैंक करती है? academic reputation, employer reputation, faculty student ratio, international faculty ratio, international students, citations per faculty, ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे कोई भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख रहे हैं MIT इज़ नंबर 1, बट जब मैं academic reputation पे क्लिक करूँगा तो हार्वर्ड आ गया नंबर 1 पे। अगर मैं एम्प्लॉयर रेपुटेशन पे क्लिक करूँगा तो भी हार्वर्ड नंबर 1 पे है। इफ़ आई क्लिक ऑन फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, बेल और कॉलेज ऑफ मेडिसिन नंबर 1 पे है। अगर मैं इंटरनेशनल फैकल्टी की बात करूँगा, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा नंबर 1 है। अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँगा, LBS नंबर 1 है। अगर मैं साइटेशंस की बात करूँगा, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी मिडल ईस्ट नंबर 1 है। एंड सरप्राइजिंगली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 2 है। अब मैं इसी फैक्टर की बात कर रहा था। एकेडमिक रेपुटेशन तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की ठीक ठाक होती है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन भी आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक ठाक है, बट वेयर दे लैक इज़ फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। अब इंडिया में 500 बच्चों पे एक फैकल्टी है, जहाँ फॉरेन में सिर्फ 40 बच्चों पे एक फैकल्टी है। तो यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा पीछे परफॉर्म करता है। इंटरनेशनल फैकल्टी की बात करें तो अगर आप एक इंडियन यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको हो सकता है 2, 4, 10 फॉरेन की फैकल्टी मिले, लेकिन बाकी सारी फैकल्टी इंडियन होती है। But when you go abroad, that changes because maximum number of faculties you would see in an institution would be international faculty. I studied in France in Kedge Business School, and the faculty there was more than 30% international, right? So ये factor बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है international students। आपके इंडियन यूनिवर्सिटी में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मालूम होगा। बट व्हेन यू स्टडी अब्रॉड देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इफ़ यू स्टडी इन IIM Bangalore, and I had a conversation long back with the director of IIM Bangalore, and he answered to my question, which was how many international students do we have in full-time MBA program, and the answer was 0. I'm talking about full-time MBA program, not exchange program. Now this is where India lacks. But anyway, this is not a video, as I said, about Indian rankings. I am talking about international rankings. So I hope in QS platform you're clear how to see university rankings. You click on overall score, and how to see subject area rankings. You click on any subject, location, study level, and click on enter or go, and you would see subject area rankings. Now this week, well, by the way, this is 27th of September. So this week in 2020, QS has published 4 or 5 different subjects and their rankings. Let's look at some of them. Masters in Business Analytics. Now, you see guys, in Masters in Business Analytics, number 2 is UCLA. But here, there was no UCLA in top 5. Why? Because Baki schools,
UCLA वाला प्रोग्राम ऑफर ही नहीं करते होंगे। तो अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स की रैंकिंग चेक करनी है, वाई वुड यू गो टू यूनिवर्सिटी रैंकिंग? You would go for business analytics rankings. Similarly, masters in finance. Similarly, master in management. Now, masters in management is one of the most chosen programs, so we'll click on masters in management. Let's see what happens when we click on view full list. Voila. ये है MIM की रैंकिंग्स 2021 की नंबर। अब ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ज़रूर हैं, बट ये जनरल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स नहीं है, ये MIM की रैंकिंग्स हैं, या MIM के जो इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी रैंकिंग है। जनरल मैनेजमेंट मास्टर्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मास्टर्स इन मैनेजमेंट, बट उसका जो क्लोजेस्ट करिकुलम किसी प्रोग्राम में होगा उसको ये रैंक करती है। फॉर एग्जाम्पल HEC स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ नंबर 1 इन MIM कैटेगरी, नंबर 2 इज़ LBS, नंबर 3 इज़ ESSEC, number 4 is ISADE, number 5 is Copenhagen, EM Lyon, Imperial, LBS, EDHEC, SEMS, WHU, St. Gallen। यहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी ना। आपको मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप ऑल पे जाएँ तो आपको सारी कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे इंडिया टाइप करूँ तो आपको IIM अहमदाबाद मिलेगा 31 पे। ना यूड बी सरप्राइज, IIM अहमदाबाद तो MIM कराता ही नहीं है, बट मैंने आपको पहले भी कहा था MIM का इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ पेडागोजी एंड करिकुलम, उस प्रोग्राम में IIM अहमदाबाद का प्रोग्राम आता है PGP इन मैनेजमेंट, जो कि वर्ल्ड रैंक 31 है। ओके, सो ये है IIM अहमदाबाद का प्रोग्राम। नाउ लेट्स गो बैक टू द रैंकिंग अगेन एंड आई विल शो यू हाउ other Indian schools have fared in this ranking. Okay, so if I click, I have to do this again. I have to click on all, and now I have to click on India. I have to type India, Control F. Okay, so number 1 is IIM Ahmedabad, 31. Number 2 is IIM Bangalore, 35. Number 3 is IIM Calcutta, 51. Number 4 100 के बाद है। सो आपने देखा कि टॉप 100 में सिर्फ 3 स्कूल्स हैं इंडिया के जो MIM कैटेगरी में आते हैं, राइट। इसी तरीके से आप MIM के साथ साथ सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस की भी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। बट प्लीज़ नोट, सारे सब्जेक्ट्स की रैंकिंग हर साल QS नहीं निकालता है, बट अगेन टॉप स्कूल्स फिर भी आपको चेक करने हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दिस वाज QS। By the way, before we go forward, let me tell you, not all schools participate in these rankings, and ये उन्हीं कॉलेजेस की रैंकिंग निकालते हैं जो स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि IIT दिल्ली ने मना कर दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए THE रैंकिंग्स में, जो कि ये रैंकिंग है, इसलिए अब वो IITs को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना उन्हें रैंक करेंगे। ओके, अब बात करते हैं THE रैंकिंग्स की। THE रैंकिंग्स में भी दोनों ऑप्शन है आपके पास। If you really want to see the overall ranking, you click on overall. If you want to see teaching, international outlook, यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, उस बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा भैया पैसा किस में मिलेगा, इंडस्ट्री इनकम, आप इसको क्लिक करें और आपको ये रैंकिंग्स आ जाएंगी। बट हम ओवरऑल देखते हैं, तो ओवरऑल में नंबर 1 इज़ ऑक्सफोर्ड, नंबर 2 कैलटेक, नंबर 3 कैम्ब्रिज, नंबर 4 स्टैनफोर्ड, नंबर 5 MIT, प्रिंसटन, हार्वर्ड, येल, शिकागो, इम्पीरियल। So this is how you can see THE rankings as well, and these are the parameters. Okay, you can also change the region here. For example, if I want to show you India, number 1 ranking for Indian universities is from Indian Institute of Science, which ranks amongst 301 to 350 in THE, which is not really good, because अगर आप यहाँ पे देखें इंटरनेशनल आउटलुक सिर्फ 20.2 का स्कोर है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग्स अगर हम सारी कंट्रीज़ का देखें तो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का 40+ है। एनीवे, लेट्स लुक एट द थर्ड वन, फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग मैक्सिमम यूरोप में मेजर की जाती है। अगर आपको यूरोपियन रैंकिंग्स चेक करनी है तो आप गूगल पर डालें फाइनेंशियल टाइम्स। बाय द वे, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ऑलवेज लुक फॉर कीवर्ड्स। आप डालें MIM रैंकिंग्स फ्रांस, MIM रैंकिंग्स जर्मनी, MSc फाइनेंस रैंकिंग्स स्पेन, जो भी आपको कंट्री सर्च करनी है या प्रोग्राम यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, वो कीवर्ड्स आप डालें और ईयर डालें 2019 या 2020 और आपको रैंकिंग्स मिल जाएंगी। सो दीज आर द रैंकिंग्स फॉर फाइनेंशियल टाइम्स फॉर MIM 2019। नंबर 1 सेंट गैलन, नंबर 2 HEC, नंबर 3 LBS। आपने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की होगी, कहीं पे सेंट गैलन नंबर 1 है, कहीं पे हार्वर्ड है, कहीं पे LBS है, बट डोंट वरी,
हर रैंकिंग का एज आई सेड अलग पैरामीटर्स होते हैं. एवरी रैंकिंग हैज़ देयर own parameters for their ranking platform, so every school would be different. You'd have seen it in India as well. Outlook, TOI, NIRF rankings are quite different from each other, but what you should look at is top 10 schools in every country. So if you're confused कि भैया रॉटरडैम जाएं कि म्यूनस्टर जाएं कि कहाँ जाएं, I am always suggesting students to look for a country. For example, if you want to go to Netherlands, select top 10 schools. Netherlands is a small country, so select top 3 to top 5 schools and apply to all of them. If you're applying to UK, don't just select top 3 because UK has more number of universities, so select top 20. France, top 10. Ireland, top 5. So इस तरीके से आप check कर सकते हैं. And the final one, EdUniversal. EdUniversal, as I said, is the best ranking tool to check out program rankings. For example, आपको check करना है फ्रांस में best programs for supply chain and logistics कौन से हैं. You just open this platform EdUniversal and you just filter program name and country and you'd be able to see the best universities. For example, number 1 business school in France for general rankings is INSEAD, but for supply chain it is Edge Business School. Similarly, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जनरल रैंकिंग्स आपको नहीं चेक करनी है अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम. आपको चेक करनी है सब्जेक्ट रैंकिंग्स. एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता दूँ सर्च करने का. बेस्ट मास्टर्स बाय कंट्री, रैंकिंग बाय फील्ड ऑफ स्टडी. सो रैंकिंग बाय फील्ड ऑफ स्टडी करते हैं. लेट्स क्लिक ऑन दिस. ओके, अब हमें अगर चेक करना है फॉर एग्जांपल मार्केटिंग. ओके, सो यू क्लिक ऑन मार्केटिंग. उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, यूरेशिया, फार ईस्ट एशिया. लेट्स सी फॉर वेस्टर्न यूरोप. नाउ वी आर गोइंग फॉर वेस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप पे मैंने सिर्फ हवर किया और हवर करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. मैं चेक करता हूँ यूनाइटेड किंगडम. इफ़ आई क्लिक ऑन यूनाइटेड किंगडम, आई विल सी टॉप स्कूल्स फॉर मार्केटिंग. ओके, सो यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ इसने वेस्टर्न यूरोप के सारे स्कूल्स लिए हैं, बट यूनाइटेड किंगडम के भी लिए हैं. सो वेस्टर्न यूरोप में जो बेस्ट स्कूल्स हैं मार्केटिंग के वो हैं इसादे, ट्रिनिटी, कोपेनहेगन, रॉटरडैम, एसेक, यूनिवर्सिटी ऑफ Bocconi, Warwick. Okay, so now you can see Warwick is number 1 in MSc Marketing in UK, but you are also able to see other schools for Western Europe. Now, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि HEC का MIM टॉप 3 में था, but MSc Marketing टॉप 3 में नहीं है, right? So this is how you can check out QS rankings, QS World University rankings जो सब्जेक्ट की होती हैं, THE rankings, Financial Times rankings and EdUniversal rankings. आप चारों ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, otherwise you get confused. My recommendation to Indian student is usually Financial Times for MIM or EdUniversal for specializations. उसके अलावा आप QS चेक कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है. ये वीडियो आई एम श्योर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो थोड़े से कंफ्यूज हैं रैंकिंग्स को लेके, थोड़े से कंफ्यूज हैं किस रैंकिंग प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए या किस सब्जेक्ट को देखना चाहिए. आई एम श्योर दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प. आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर उसकी रैंकिंग आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं. अगर आपको नहीं मालूम है, आप रैंकिंग चेक करना चाहते हैं तो भी कमेंट करें, या अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट एंड द टीम वुड असिस्ट यू. एंड उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, please feel free to comment below and we will be happy to answer that question. Before that, I would like to tell you that please share this video with your friends who are really planning to study abroad and they are confused within the rankings. But before we wrap up this video, I want to tell you something. Please, please, please do not make a decision on the basis of only rankings. आप कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ बसना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, किसके साथ पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए. आप जब गाड़ी लेने जाते हैं और आपको सिर्फ डीलर ये बोले कि भैया इस गाड़ी का सबसे बेहतरीन माइलेज है इसलिए आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप BHP के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से माइलेज वाली गाड़ी आपके लिए नहीं है, right? So please do not make a decision on the basis of solely rankings. Look at multiple factors, look at the ranking indicators, talk to your peers, talk to your family, talk to your friends, but again किसी भी एक वजह से आप डिसीजन ना लें. I hope this video was very helpful for you. If you have any questions, feel free to comment below. We'll be happy to connect with you and assist you further. By the way, अभी कोविड चल रहा है, please take very good care of yourself, take care of your family. जय हिंद.